کیا حال ہے میرے دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب مستی میں ہوں گے۔ آج سے میں کچھ نئی کہانیوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ ایسی بھیانک اور دل دہلا دینے والی کہانیاں جنہیں سننے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رات کو جب آپ موتنے کے لیے لیٹرین تشریف لے کر جائیں گے اور پریشر لگاتے وقت جب آپ اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے پیچھے کوئی انجانی چیز موجود ہے اور وہ آپ کا دیکھ رہی ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے آپ بار بار اپنا پریشر توڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، لیکن پیچھے کوئی موجود نہ ہوگا۔ تو بکچودی بھرے اس انٹرو کو ختم کر کے آئیے چلتے ہیں میری سب سے پہلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی پاشو نامی ایک نوجوان لونڈے کی ہے جسے ڈیلی ولاگنگ کا بہت شوق تھا، لیکن پاشو کوئی فیملی ولاگر نہ تھا بلکہ اس کا کانٹینٹ کسی اور طرح کا تھا۔ پاشو ہمیشہ ایسی جگہوں پر جا کر ولاگ شوٹ کرتا تھا جن جگہوں کو آسیب زدہ کہا جاتا تھا۔ ان جگہوں پر دن میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہ کرتا تھا، لیکن پاشو وہاں رات کو جا کے ولاگ شوٹ کرتا تھا۔ اس چتیاپے میں اس کا ایک چوتیا دوست بھی شامل ہوا کرتا تھا جس کا نام مونو تھا۔ مونو دکھنے میں باڈی بلڈر لگتا تھا، چوڑا سینہ، بھرے ہوئے بازو، لیکن ٹانگیں بالکل پتلی مٹھل۔ پاشو مونو کو اپنے ہر ولاگ میں ساتھ رکھتا تھا کیونکہ پاشو کا ایسا سوچنا تھا کہ اگر کبھی کسی بھوت سے آمنا سامنا ہوا تو وہ بلڈر مونو کو اس بھوت کے ساتھ بھڑوا دے گا، جبکہ مونو بھی ہمیشہ پاشو کو یہی کہتا تھا کہ اگر کبھی کوئی بھوت ہمارے سامنے آیا تو ٹینشن مت لینا، میں اس بھوت کی گانڈ پھاڑ دوں گا۔ سوشل میڈیا پر ان دونوں کے فالوورز کافی زیادہ ہو گئے تھے جو ان کے ہانٹڈ ولاگز کو بہت پسند کرتے تھے۔ پاشو کے ابا پاشو کے ان چتیاپوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا لونڈا پڑھ لکھ کر ایک قابل ڈاکٹر بنے، لیکن پاشو تو انسان کا بچہ بھی نہیں بن رہا تھا۔ ایگزامز سر پر تھے اور پاشو کے ابا نے پاشو کو فل تیل والا ڈنڈا دے رکھا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اگر پاشو اس دفعہ ایگزامز میں فیل ہوا تو وہ اس کو کسی پنکچر والے کی دکان پر لگوا دیں گے۔ ایگزامز کی ٹینشن میں ایک شام جب پاشو پڑھائی میں مصروف تھا، عین اسی وقت مونو کا فون آتا ہے۔ مونو اسے بتاتا ہے کہ اس کی نظر میں ایک نیا ہانٹڈ گھر آیا ہے، ایک ایسا ہانٹڈ گھر جس سے پورا علاقہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اگر ہم اس گھر میں ولاگ شوٹ کرتے ہیں تو پبلک کو ہمارا وہ ہانٹڈ ولاگ بہت پسند آئے گا۔ یہ سن کر پاشو کی آنکھوں میں ایک چمک جاگ اٹھی۔ ایگزامز گئے کانڈ مرانے اور پاشو کے ذہن میں بس ولاگ شوٹ کرنے کی پلاننگ شروع ہو گئی۔ پاشو نے اسی رات ولاگ شوٹ کرنے کا پروگرام ڈن کیا جس پر مونو بھی ایگری ہو گیا، اور پھر رات کو اپنے موبائل فونز، کیمراز اور باقی ضروری سامان اٹھا کر چھپر میں کسی کو بنا بتائے وہ دونوں اس گھر کی جانب نکل پڑے۔ وہ گھر ان کی کالونی سے دور ایک دوسرے سنسان علاقے میں واقع تھا۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، موسم سرد اور ہوا بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تقریباً پون گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں آخر کار اس گھر تک
पहुंच गए। आगे की कहानी पाशु की अपनी जुबानी। वो घर जितना हमने सुना था उससे कई गुना ज्यादा पुरअसरार और खौफनाक मालूम हो रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि हमें इस घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोनू जो पुरजोश नजर आ रहा था तो उसे देखकर मैंने भी अंदर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर मैं अंदर जाने से मना करता तो मोनू मुझे गंडफट्टू समझता। अंदर दाखिल होने के लिए जैसे ही हमने दरवाजा खोला, दरवाजे में से एक अजीब सी आवाज आई। घर अंदर से बिल्कुल तबाह बर्बाद हालत में था। दीवारों पर मकड़ी के जाले भरे हुए थे। हर तरफ एक अजीब सी बदबू मौजूद थी, जैसे किसी ने हाजमे का चूरन खा के गैस खारिज कर दी हो। मोनू ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने वही व्लॉगर्स वाले खास अंदाज में हेलो गाइस कहा और फिर उल्टी सीधी बकचोदियां शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग शुरू हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरे फोन की बैटरी लो हो गई। बैटरी सिर्फ 1% बची थी और अगले ही लम्हे मेरा फोन ऑफ हो गया। मैं हैरान था कि मैंने तो अपना फोन 100% चार्ज कर रखा था, लेकिन मेरी हैरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब मुझे पता चला कि मोनू का फोन भी बैटरी लो होने की वजह से ऑफ हो गया था। सिर्फ यही नहीं, हमारे दूसरे कैमरास और बाकी के गैजेट्स भी काम नहीं कर रहे थे। मैंने मोनू को वापस चलने को कहा, क्योंकि उस घर में बिजली भी नहीं थी, जिसकी वजह से हम अपना कोई गैजेट या कैमरा चार्ज नहीं कर सकते थे। अचानक हमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मेरी फटना शुरू हो गई। मैंने मोनू को भागने का कहा, लेकिन मोनू राजी न हुआ। मोनू ने कहा कि ये शायद कोई बिल्ली होगी, आओ जरा चलकर देखते हैं। हम जैसे जैसे उस घर के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल होते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें एहसास हो रहा था कि हालात अब खराब होने जा रहे हैं। थोड़ा मजीद अंदर जाने के बाद हमें अपने सामने एक दरवाजा खुला दिखा, जिसके अंदर से धीमी सी रोशनी बाहर आ रही थी और गालबन वो रोने की आवाज भी वहीं से आई थी। हमने हिम्मत की और उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि वहां एक बच्चा और एक लड़की मौजूद थी। दोनों डरे हुए थे। उन्हें देखकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो जिंदा थे या मुर्दा। उनकी रंगत नीली पड़ी हुई थी। कुछ देर के लिए कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया और फिर उस लड़की ने खामोशी का सीना चाक करते हुए हमें कहा कि भाग जाओ, वो आता ही होगा। अगर उसने तुम्हें यहां देख लिया तो वो तुम्हें भी मार देगा, जैसे उसने हमें मारा था। उस लड़की का ये जुमला सुनकर मेरा वजूद कांप उठा था, क्योंकि यहां आने से पहले मैंने इंटरनेट पर इस घर के मुतालिक थोड़ी मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी और एक न्यूज़ आर्टिकल में मुझे ये पता चला था कि यहाँ एक साइको शख्स ने अपनी बीवी और बच्चे को बेसबॉल बैट से मारकर ख़त्म कर दिया था और बाद में खुद सुसाइड करके मर गया था। अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि हमें अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा भयानक सा शख्स हाथ में बेसबॉल बैट लिए खड़ा था। उसे देखकर मेरे कानों में एक धमाके की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये धमाका किसी बॉम्ब का नहीं बल्कि मेरी गांड फटने का था।
मेरी हालत खराब हो चुकी थी और मेरा मूड नुन्नू की नोक पर आ चुका था। लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि मेरा बॉडी बिल्डर दोस्त मोनू खतरनाक हालात का मुकाबला करना जानता था। मैंने गर्दन घुमाकर अपने बहादुर दोस्त मोनू की तरफ देखा, जो ऑलरेडी अपनी पैंट में मूत चुका था। उसकी यह हालत देखकर मेरे आसाब साथ छोड़ गए और बिलाखिर मैंने भी अपनी पैंट में मूत दिया। गरम गरम मूत मेरी टांगों पर से बहता हुआ फर्श पर फैलता चला जा रहा था। हम दोनों का मूत आपस में मिलकर एक नया मूत बना रहा था और वो भूत हमारे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगले ही लम्हे उसने बेसबॉल बैट से मेरे दोस्त की गर्दन पर वार कर दिया। बेसबॉल बैट मोनू की गर्दन पर लगने के बाद ऐसी आवाज आई जैसे किसी खूबसूरत लड़की ने अपने नाजुक हाथों से टक बिस्किट तोड़ा हो। उस कड़वे भूत ने कई सारे वार मोनू की गर्दन पर किए और फिर एक भयानक सी मुस्कुराहट के साथ उसने मेरी तरफ देखा। यह नजारा देखकर मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी टांगों पे लगा गर्मा गर्म मूत अब ठंडा हो चुका था। मौत खुल्लम खुल्ला मेरे सामने मुजरा कर रही थी। अचानक मैंने पलटकर अपने दोस्त को वहीं छोड़कर बुज़दिलों की तरह भागना शुरू कर दिया। मैं तेज भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी मुट्ठल टांगें मेरा साथ ना दे रही थीं। मैं सोच रहा था कि काश मैं अपनी तीसरी टांग को भी भागने के लिए इस्तेमाल कर पाता। भागते भागते अचानक मेरे सामने 2 दरवाजे आए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा दरवाजा चुनूं कि अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं समझ चुका था कि वो कड़वा भूत मेरे पीछे आ रहा है। लेकिन फिर अचानक मैं क्या देखता हूं कि वो भूत नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोनू था। मोनू जख्मी हालत में मेरे करीब आया और उसने मुझे अपने साथ एक दरवाजे में दाखिल होने को कहा और मैं बिना सोचे समझे मोनू के साथ उस दरवाजे में दाखिल हो गया। एक कमरे से गुजरते हुए हम एक बालकनी में पहुंचे जो तकरीबन 4 मंजिला ऊंची थी। मोनू ने मुझे कूदने का कहा। मैं मोनू के इस चुतियापे की बात पर काफी गुस्सा हुआ। मैंने उसे कहा कि अगर हम यहां से कूदे तो बुरी तरह मारे जाएंगे, लेकिन मोनू ने कहा कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐन उसी मौके पर वो कड़वा भूत भी हमारे पीछे आ खड़ा हुआ। मैं समझ गया कि अब वाकई हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो हम वहां से नीचे कूद जाएं या उस कड़वे भूत के हाथों मारे जाएं। और बिलाखिर हमने वहां से छलांग लगा दी। नीचे गिरने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी हों। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी जान निकल चुकी है। लेकिन ऐन उसी मौके पर मैं देखता हूं कि हमारे ठीक बराबर में वो कड़वा भूत भी खड़ा था। मैंने अपने जिस्म की सारी ताकत लगाई और मैं खड़ा हो गया। मोनू भी मेरे साथ ही खड़ा था और हम दोनों ने वहां से भरपूर दौड़ लगा दी। हम अपनी बाइक भी वहीं भूल चुके थे। हम बस पागलों की तरह दौड़े चले जा रहे थे, दौड़े चले जा रहे थे और दौड़े ही चले जा रहे थे। उस दिन मैं जितनी तेज दौड़ा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी उतना तेज दौड़ सकता था। आखिरकार दौड़ते दौड़ते हम लोग अपने घर वापस आ गए। मैंने मोनू को कहा कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए और मैं भी खामोशी के साथ अपने घर में दाखिल होकर अपने कमरे में चला गया। वो रात मेरे लिए बहुत भारी गुजरी और मैं सारी रात जागता रहा, यहाँ वहाँ परेशान घूमता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज वाकई हमारा सामना
एक असली भूत से हो गया था। आखिरकार जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मेरी जान में कुछ जान आई। सुबह के वक्त मैं जैसे ही अपने घर वालों की तरफ गया तो अचानक से मेरे घर की बेल बजी। अब्बा दरवाजे की तरफ बढ़े तो मैंने उन्हें कहा कि आप रुकें, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन अब्बा ने मेरी बात ऐसे अनसुनी कर दी जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। मैं समझ गया था कि शायद कल रात घर से गायब होने की रिपोर्ट अब्बा को मिल चुकी थी। इसी वजह से वो मुझसे सख्त नाराज थे। लेकिन मैं भी अब्बा के साथ साथ दरवाजे तक चला गया। अब्बा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि हमारे घर के बाहर पुलिस ऑफिसर खड़ा है। मैं समझ चुका था कि शायद कल रात जो हमने उस घर में हुल्लड़बाजी मचाई थी, किसी ने पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेन कर दी थी। और क्यों ना हो, हम अपनी मोटर बाइक भी वहीं भूल आए थे। लेकिन अगले ही लम्हे जो बात पुलिस ऑफिसर ने अब्बा को बताई, वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन और मेरी नुन्नू के नीचे से शट्टे निकल गए थे। पुलिस ऑफिसर ने अब्बा को बताया कि आज सुबह उन्हें बराबर इलाके में एक पुराने घर से 2 लाशें मिली हैं। उस लाश के पास से एक आईडी कार्ड बरामद हुआ जिस पर यहाँ का एड्रेस था, और वो आईडी कार्ड मेरा था। पुलिस ऑफिसर अब्बा को अपने साथ हॉस्पिटल ले गया, जबकि मैं भी उनके साथ साथ ही हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो हमें एक मुर्दा खाना ले गया जहां 2 बॉडीज पड़ी थीं। एक बॉडी मेरी थी और दूसरी मोनू की, और वहां मोनू भी मौजूद था जो अपनी ही बॉडी के बराबर में खड़ा परेशान मुझे देख रहा था। मैं और मोनू चूतियों की तरह एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि हकीकत अब पूरी तरह हम दोनों पर वाज़े हो चुकी थी। हमारे लसन लग चुके थे और हम मर चुके थे, और हमारी रूहें शहर में यहाँ वहाँ भटकती फिर रही थी। अगर आपको भी मेरी यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा भी सामना ऐसे ही किसी कड़वे भूत से होगा और तुम्हारी भी पैंट में मूत निकलेगा। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।